Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And yes, it's been a few days. I had to take a break due to some personal commitments and unavoidable circumstances. But now we will be regular. We will be having videos today onwards on a regular basis. We will have one content video and one MCQ video as like earlier as we started. जैसे कि आपको पता है योर एग्जाम इज नियर द कॉर्नर, आपके एग्जाम बहुत ही जल्द आपको एग्जाम आपका देना है. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2024 और इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक योर अगस्त एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड. आप बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए. एंड अगर आपने जून के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ था, देन यू कैन यूज दिस वीडियोज एज रिविजन. आप रिवाइज कर सकते हो डबल स्पीड में लगा के, बिकॉज दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू. दैट माई एश्योरेंस, बिकॉज आई हैव बीन एनालाइजिंग द प्रीवियस क्वेश्चन. Then only I'm like getting this content for you so that it can be fruitful for you when you're watching it, right? And also if your preparation was not that good, तो आप इन वीडियोस पे थोड़ा प्रिपरेशन और अच्छा आप कर सकते हो. यू कैन रिलाई अपॉन दिस प्रिपरेशन लाइक प्रिपरेशन वीडियोस टू मेक इट क्विक, ताकि आप कम टाइम में थोड़ा ज्यादा सीख सको. because my videos will not be that lengthy because I know we need time for self study. So we will try to cover some important concept in conceptual videos, and we'll try to complete the MCQs as we were discussing five most important MCQs with detailed explanation in the MCQ video. So let's start. Today I have got the concept video which is types of evaluation from unit 1 teaching aptitude. So अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं then please subscribe to my channel. Myself Jayanti. I have cracked UGC NET and JRF in commerce, and I have been working as UGC NET faculty, and I'm also a research scholar now pursuing PhD in commerce. And yeah, I have cracked this exam in my very first attempt, so I can assure you that you can also crack it with a good strategy and a lot of hard work. So ready? Let's start. So the very first slide I have given, okay, we will try to stick to the exam oriented preparation because my videos will be definitely having the approach of exam oriented. पढ़ने के लिए सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है because the syllabus is very like lengthy, it's vast, it has a vast syllabus, बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए. But we will try to stick to exam oriented approach because I want you to crack it with a proper strategy, right? So सबसे पहले आपको उसके टाइप्स पता होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन मींस जब हम लर्निंग करते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि आपने अच्छे से सीखा या नहीं, आप कितना सीख पाए हो, कितना नहीं, उसका इवैल्यूएशन करना. उसके टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हम इसमें पढ़ेंगे, which is a very very important part of your unit 1. Okay, अगर आप ये समझ जाओगे then it will be very easy for you to attempt the questions from evaluation, right? According to approaches there are two types, formative and summative. ये वही है जो यहाँ भी है. According to functions, according to nature of reference, norm reference and criterion reference. So let's understand what are these types of evaluation one by one. अगर आप पहली बार इवेल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं देन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. शॉर्ट एंड क्रिस्प जो आपको समझना चाहिए, दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट, प्लेसमेंट इवेल्युएशन. इवेल्युएशन मीन्स जैसा मैंने बताया, अपने लर्निंग को, रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना, कितना आप सीख पाए हो उसको इवेल्युएट करना. तो पहला जो टाइप है इवेल्युएशन का वो है प्लेसमेंट इवेल्युएशन. जब आपको एग्जाम में प्लेसमेंट इवेल्युएशन से क्वेश्चन आए और ऐसा पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू रिगार्डिंग प्लेसमेंट इवेल्युएशन. सो प्लेसमेंट इवेल्युएशन आपका क्या है? इट इज डन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस. प्लेसमेंट यानी सही जगह पर सही व्यक्ति को प्लेस करने के लिए, टू प्लेस द राइट पर्सन विद द राइट कैपेबिलिटी इन द राइट प्लेस, राइट? तो प्लेसमेंट में कौन सा हो जाएगा? जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, बड़े लाइक कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे पहले वो आपका एंट्रेंस टेस्ट लेता है टू चेक दैट यू आर अप्रोप्रिएट टू प्लेस दैट और नॉट. आप एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो उस प्लेस के लिए या नहीं, उसे चेक करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है. उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, जो भी चीजें की जाती हैं to place the right person before the selection or before the learning. Okay, so it judges the level or position of the pupil in the instructional series. ये आपका लर्निंग फेज से पहले का टेस्ट है. जब आप कुछ सीखने जा रहे हो या फिर कुछ कॉलेज में आप कोई डिग्री पाने के लिए जा रहे हो तो वहां पे एडमिशन होने से पहले ही आपका इवेल्युएशन किया जाता है. सो दिस इवेल्युएशन कम्स बिफोर लर्निंग, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज
taking place to select the right person in the right place. So placement evaluation जैसे ही आ जाए, statement based question इसमें आते हैं. So this evaluation comes before learning. Clear? एन एग्जाम्पल भी आते हैं, तो जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, entrance test is the type of which evaluation? So entrance test is the type of placement evaluation. Clear? Coming to the next, formative evaluation. इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में सही है. सो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन शॉर्ट. क्या है ये? दिस इज टू एग्जामिन द लर्नर्स प्रोग्रेस इन द लर्निंग प्रोसेस. तो ये हमारा जो इवेल्युएशन है वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस है. ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब में जानना है कि कौन लर्निंग से पहले, कौन लर्निंग के दौरान, कौन सा लर्निंग के बाद. सो ये आपका प्री लर्निंग, लर्निंग से पहले. ये आपका ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब आप सीख रहे हो. ओके, सो उस सीखने के दौरान जो हमारा असेसमेंट और इवेल्युएशन होता है वो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है. और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डन बिफोर लर्निंग, ड्यूरिंग द लर्निंग. सो इट इज प्रोसेस ड्यूरिंग द लर्निंग, पढ़ाई सीखने के दौरान. Okay. Now, the main purpose of this evaluation is to feed continuous feedback to the teacher and the pupil as well. टीचर और पुपिल के बीच में कंस्टेंट फीडबैक कि कैसा वो सीख रहा है, वो कंस्टेंट फीडबैक मिलता रहे, उसके लिए ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया जाता है. जैसे कि मंथली टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया. तो ये हमारा सीखने के दौरान अगर आपका इवेल्युएशन होता है तो वो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है. क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है? डायग्नोस्टिक मीन्स डायग्नोस करने के लिए. आप अगर एक स्टूडेंट हैं एंड आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का पता करने के लिए हम ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं. दिस इज मोर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग लर्नर्स डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस पता करना है. ये भी आपका ड्यूरिंग द लर्निंग है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है. ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग लर्निंग लिखा रहे तो ये सब कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं. ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स diagnostic evaluation, formative evaluation. Pre-instruction means placement evaluation. Okay. So diagnostic evaluation is to done to recognize your weakness or difficulty. अगर लर्निंग फेज के दौरान हमें कोई परेशानी हो रही है, कोई हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उन परेशानियों का पता लगाने के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है वो हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है. जैसे अगर आप एक टीचर है, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आप उसका क्विज लेते हो, क्विज और इनफॉर्मल डिबेट्स लेते हो टू चेक कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में या फिर वो अच्छे से समझ चुके हैं. सो डायग्नोस्टिक मीन्स डायग्नोस, उनके प्रॉब्लम्स का पता लगाना. ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज योर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. यू ऑलवेज ट्राई टू कैच द कीवर्ड्स बिकॉज बहुत सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते. सो वी हैव टू रिलेट द कीवर्ड्स टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, नेक्स्ट, समेटिव इवेल्युएशन. समेटिव इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ लर्निंग, सबसे लास्ट में. अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो लास्ट में जो आपका टेस्ट लिया जाता है ये बताने के लिए कि आपका कैसा रहा लर्निंग फेज, आपने कैसा परफॉर्म किया, तो वो आपका समेटिव इवेल्युएशन हो गया. इसमें आपको ग्रेड्स, मार्क्स, ये सारी चीजें दी जाती है. जैसे एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, कोई प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया गया सीखने के बाद, सो उस प्रैक्टिकल असाइनमेंट के द्वारा या फिर आपका एंड टर्म में जितना एग्जाम में जितना मार्क्स आएगा उसके द्वारा आपका एक परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन निकाला जाता है आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस. सो इट कम्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन. ओके, तो हमने क्या पढ़ा? प्लेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड समेटिव इज आफ्टर इंस्ट्रक्शन. टू गेट योर लाइक परफॉर्मेंस, आपने कैसा परफॉर्म किया, कैसा सीखा, उसको जानने के लिए. नेक्स्ट, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन में डिफिकल्टी होती है किसी किसी को समझने में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो. सो लेट मी टेल यू, अगर आप एक लर्नर के ग्रुप में हैं and your performance is compared to the other learners, okay, learners version is likened to the others in the group, दूसरों के मुकाबले आपका like performance कैसा है, अगर ऐसा कंपेयर किया जाता है then that is your norm referenced evaluation. जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे कि हमारा ये यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम, इसमें आपको क्या मिलेगा? परसेंटाइल 99 परसेंटाइल. लाइक आई गॉट ओवर देन 99 परसेंटाइल टू गेट द जेआरएफ. अगर आपको जेआरएफ पाना है तो 99 से ऊपर परसेंटाइल आप सोच के रखिए, 98, 99, राइट. सो नॉन रेफरेंस मतलब क्या? परसेंटाइल का मतलब आपको कंपेयर किया जाता है बाकी कैंडिडेट्स के जो उन एग्जाम में बैठ रहे हैं. Okay, so when comparison of the learners is there and according to that comparison you get your marks or something, percentile,
that is your norm reference test. So it is a test where you are compared with the other candidates of the same exam. क्राइटेरियन रेफरेंस क्या हो गया, इसमें आपको किसी दूसरे लर्नर से कंपेयर नहीं किया जाता, कैंडिडेट से कंपेयर नहीं किया जाता, इसमें आपको एक सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, बेसिक क्राइटेरिया से कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम में आप बैठ रहे हो जिसमें 80% आपको लाना है, 80% इज द स्टैंडर्ड मार्क्स, 80%. तो अगर आप 80% से ऊपर आपका आया देन यू आर सिलेक्टेड, अगर 80% से कम आया देन यू आर नॉट सिलेक्टेड. Doesn't matter how many candidates are there and you are getting more than how many candidates, you are getting less than how many candidates, doesn't matter at all. तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया. जैसे एग्जाम में 30% अगर आया तो पास, सो 30% के ऊपर जितने भी बच्चे आए वो सारे पास, तो वो हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया सेट है, स्टैंडर्ड सेट है कि 30% लाना होगा, 80% लाना होगा. नॉर्म रेफरेंस में कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है. अगर 99% बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं तो 98% वाले भी बिना सिलेक्ट हुए घर जा सकते हैं. दैट मीन्स उसमें कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, जितना ऊपर जो जा सकता है कंपैरिजन. बट क्राइटेरियन रेफरेंस में दैट इज अ लाइक स्टैंडर्ड, वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट होता है, बार सेट होता है, जिसको आपको टच करना है. इफ यू फॉल शॉर्ट देन यू मस्ट कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड द स्टैंडर्ड. आपको फिर से लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करना होगा अगर आप स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचते हैं, उस मार्क्स तक नहीं पहुंचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the temperature, the accepted healthy standard is 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट. जो हमारा एक स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होना चाहिए हेल्दी बॉडी का वो है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट. तो अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज्यादा है दैट मीन्स वी आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड, सो वी आर इल. सो जस्ट लाइक सेम, जब आपका एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया सेट होता है वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया. तो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइक एनालिसिस, आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में कौन सा इवेल्युएशन यूज किया जा रहा है. अगर आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है जिसमें कोई सेट स्टैंडर्ड है, लाइक यू गॉट 70% एंड ऑल द स्टूडेंट गॉट 70 over 70% are selected, the student who got less than 70% are not selected, what type of evaluation is this? So this is your criterion reference evaluation. Okay, समझ में आ गया? So this was a short video on evaluation. Hope you all understood what is placement evaluation, summative evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation, norm reference and criterion. ये सारे टाइप्स के बारे में जानना, इनके कीवर्ड्स के बारे में जानना, इनका जो बेसिक थीम, जो फाउंडेशन है वो जानना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट द इवैल्यूएशन क्वेश्चन. So hope it was clear and you got to know what these evaluation are if you are reading first time. और अगर आपने पहले से ही पढ़ लिया है, hope it worked as a revision for you. And thank you so much for watching this video. So we are meeting after a long time, but yes, now we'll be meeting daily. So thank you so much for watching it again, and let's take a break now, and we'll be meeting very soon with the other video, with the next informative video. And please like and share my video if you get informative, and then please do your comments. I would love to read your comments if you have some suggestion or anything. Okay, thank you so much. Bye bye.